Assalamu alaikum. This is the overview of today's lecture. Firstly, we will define research, what is the theory and research, and how research is necessary for the managers, and what is basically the nature of business and management research. What are different types of the research process, and how to identify a problem, and what is literature review, types of research questions, and contents of research proposal. So these things will be briefly covered over here, and we will also define what is research monograph and how it is different from normally research papers and thesis and dissertation or books, etc. Okay. So let us begin with the definition of the research. Can anybody tell me what is research in your own mind? What do you mean by the research? Uh, Hello, Yes, Hassan Saab, I'm sir. listening. We can define it as a process of collecting data Okay. against an specific problem or a topic. Okay, well done. Okay, well done. You are very much right. It is the process of collecting data on a specific problem, specific and known problem. So you not only stop here at the end of the collecting data, but not only you have to collect the data, but you have to analyze it and report it and interpret the data. Okay, but before collecting the data, you have to identify a research problem. Then you have to identify a research design, because you know that the way you collect data also matters a lot. Because there are certain issues while designing the research and while collecting the data, because different approaches which are used to collect data have a different meaning and have a different interpretations. Okay, so let us define research formally. Research is a process of finding solutions to a problem after thorough study and analysis of the situational factors. This is the definition of the Umesh Sekaran in her book on the research methodology, 2016 edition. Okay, so it is a process of finding, as you said, it is a finding the solution against a particular problem. So it means we need to conduct a research when we face a problem, when we think that there is a problem which needs further exploration, further identification. What are the reasons of that problem and how to address this problem? Okay, so in the scientific studies, we have to address and solve the problems by collecting the data based on a particular data which is scientifically collected and scientifically analyzed and interpreted, so that it gives us a very optimal solution, and it gives us a very clear picture as regards to what are the sources of the problem, what are the conditions of the problem, and how this problem can be solved for a longer period, so that this problem may not repeat or so often, or may not have the negative consequences. Okay, so while analyzing the things, the collected data, you have to take into account the situational factors. Okay, so this is the definition of the Umesh Sekaran. She also further said that the business research is an organized, systematic, database, critical, objective inquiry or investigation into a specific problem, undertaken with the purpose of finding answers or solutions to it. Okay. So, as I discussed, again, the central point is research problem. What is that? If there is no any problem, it means you don't need to conduct a research, because you don't have enough time to waste on finding the solutions for already solved problem, or for the situation which is not a problem. Okay, so firstly there is a specific problem, then you want to conduct a research.
But that research, which we call here as a business research, is not a very the common thing or very traditional thing, but it is a highly organized thing. So organized in the sense that it has certain steps, it has a certain linkages, and it has the certain process which you have to follow, certain rules which you have to follow. Secondly, it is a systematic, and again, it is a database. So normally in pure sciences, people uh, come up with a solution, come up with a research on a particular data, but also in social sciences, especially in the business sciences, or the data, or the the decision making sciences, or the managerial sciences, we also rely on certain types of data in order to arrive at a very the scientific solution to any problem. So it is also critical. What do you mean by the critical? Critical in the sense that we have to uh, reconsider what is available to us. We have to criticize. We have to analyze from the different angles, so that we may arrive at a very pinpoint and a very specific thing. What is the problem and how it can be solved. So it is objective in a sense that it relies on the data which cannot be negated, any data which can be verified. So we have to rely on a very verifiable data, not on totally the subjective data, which is prone to different interpretation. So the objective proof is a proof which have no any further interpretations, which have very specific interpretations. So we have to be very specific in collecting data and using the data which is objective in nature, not as subjective in nature. And so then you have to investigate these things, and basic purpose, as we discussed, is to find answers or solutions to specific problems. Another author of business research books, the Sander, says that as something that people undertake in order to find out things in a systematic way, thereby increasing their knowledge. So they also consider that the research is a process, is a systematic process. It adds into our knowledge. It creates a knowledge. So Sander is focusing on knowledge creation through systematic research. So systematic in a sense that research is based on logical relationships and not just beliefs. So to find out something, it means suggests that there are multiplicity of possible purposes for our research. So these may include describing, explaining, understanding, criticizing, and analyzing. Okay, but you know that there's a role of theory in the research. So because whenever we have to conduct a research, or we have to form a hypothesis, or a proposed relationship between two things or variables, we have to base our argument based on a theory. Okay, so what's the theory and how it guides the research? So theory can be defined, in different ways. It means a lot of different things depending on whom we ask. So theory to mean an idea or a hunch that someone has. Okay, a theory is any concept, instrument, model, or a framework that helps them to think about or solve the problem, to describe a phenomena, or to better understand a topic of interest, such as a competitive advantage, portfolio management, and sociology, and very different things. Okay, say for example, the expectancy theory, which was suggested by Room. They said this theory proposes that the people will choose how to behave depending on outcomes they expect as a result of their behavior. Okay? So why you are attending my class? So you expect that attending the class will yield positive benefits with regard to not only the new knowledge you will be getting, but it will also help you in attempting the exams and gaining the marks and getting the degree. Okay, so this is the expectation which you think while doing or choosing any alternative or any objective. Okay,
So say for example, if your manager says that okay gentlemen, you have to work for 2 hours more in the office, so what will be your question? You will think that what I will get in return, है ना? अगर आपको कोई कहता है कि आप एक्स्ट्रा टाइम काम करें या कोई वीकेंड पे आप जो है रेगुलरली काम करें, तो आपका पहला जो क्वेश्चन क्या होगा कि आपको उसके बदले में क्या मिलेगा, ठीक है? से फॉर एग्जाम्पल आपको कहेंगे ओके जी, आपको जो है उसके लिए कोई फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेंगे, ओके? इफ यू वांट टू सेक्रीफाइस योर वीकेंड and you expect that, first you have to think that you expect something, any there is any outcome or not. If there is no any outcome, your answer will be no, simply no. Okay, sorry sir, free में तो कोई भी नहीं करता, ठीक है? हाँ, yes, someone is offering you, तो देन थ्योरी ये कहती है कि जब एक बंदा जो है वो कहता है जी कि आउटकम मिलती है, तो आउटकम की फिर क्या करता है, वो आगे वैल्यूज चेक करता है, यानी वैल्यू चेक करता है, यानी फॉर एग्जाम्पल आपका आउटकम जो है कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मिसाल के तौर पर अगर आपको कह दीजिए कि आप जो है मिसाल के तौर पर अगर पूरा वीकेंड आप काम करें और महीने में या 6 महीने तक आप काम करें, तो हम आपको जो है वो 2000 रुपये दे देंगे पर डे पे, ठीक है? तो हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जो कि एक दिन का 2000 मिले तो पूरा दिन बैठे रहें, मगर कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे नहीं यार, 2000 रुपये के लिए मैं जो है पूरा दिन या वीकेंड ज़ाया नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे फैमिली को टाइम देना है, बच्चों को टाइम देना है या जो कुछ भी है। तो ये जो वैल्यू परसेप्शंस हैं, ये भी या वैल्यू बिलीफ्स जो हैं हर बंदे के अपने-अपने होते हैं, तो आप उसको पहले अपनी वैल्यू या वैल्यूएशन के बेस के ऊपर या वैल्यूज़ के बेस के ऊपर आप उसको चेक करते हैं। तो ये थ्योरी बुनियादी तौर पर हम आपको थोड़ा-सा यूँ समझाएँ कि ये कहता है जी 3 जो है वो एक्सपेक्टेंसीज़ होती हैं। एक को हम कहते हैं परफॉर्मेंस एफर्ट परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेंसी, क्या कहते हैं? एफर्ट परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेंसी, दूसरी होती है परफॉर्मेंस आउटकम एक्सपेक्टेंसी और तीसरी होती है आउटकम वैल्यूज एक्सपेक्टेंसी। अगर आपको कोई काम मिसाल के तौर पर टास्क दे दिया जाता है, तो टेक्निकल टास्क दे दिया जाता है, तो आप उसको एग्री करेंगे या नहीं करेंगे? तो उससे पहले आप चेक करेंगे कि आया आपकी अपनी सेल्फ एफिकेसी लेवल क्या है? यानी आपकी जो एफर्ट्स हैं, अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे काम करना चाहते हैं, कुछ रिसर्च पे करना चाहते हैं, किसी टेक्निकल प्रॉब्लम पे काम करना चाहते हैं, आया आपके अंदर वो एक्सपर्टीज़ है या नहीं है? अगर आप समझेंगे कि मुझ में जो है वो एक्सपर्टीज़ है और मैं परफ़ॉर्म कर लूँगा, तो इसका मतलब है आपकी एफर्ट परफ़ॉर्मेंस एक्सपेक्टेंसी हाई है, तो यू विल एग्री अपॉन कि जी ओके मैं करूँगा। मगर सेकंड जो फौरी तौर पे एक्सपेक्टेंसी होगी कि अच्छा मैं परफ़ॉर्म तो करूँ, मगर उस मेरी परफ़ॉर्मेंस से मुझे आउटकम क्या मिलेगा? ठीक है? हाँ, अगर आपको आउटकम भी मिलता है, तो फिर आप अगले मरहले पे आप क्या करेंगे, उस आउटकम को चेक करेंगे कि उस आउटकम की आपके लिए वैल्यू क्या है, यानी आउटकम वैल्यू एक्सपेक्टेंसी। तो ये कहते हैं ये जो 3 एक्सपेक्टेंसीज़ हैं, दीज़ आर इंटररिलेटेड इनटू एन इक्वेशन एंड दीज़ आर द मल्टीप्लाइड बाय ना, मतलब कि एफर्ट परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेंसी और मल्टीप्लाइड बाय दिस एंड दिस। अगर इफ एनीथिंग इज 0 द रिजल्ट विल बी 0, ओके, द मोटिवेशन विल बी 0। तो दिस इज व्हाट द एक्सपेक्टेंसी थ्योरी सेज। नॉर्मली भी आप अगर देखते होते हैं उसमें तो जब भी आपको कोई काम मिलता है या किसी को कोई जो है वो चीज़ें मिलती हैं, तो हर बंदा यही चेक करता है, ठीक है? या दूसरी थ्योरीज़ ये बताती हैं कि लोग जो हैं, वो क्या करते हैं कि जो है अपनी इनपुट और आउटपुट के रेशियो को मतलब है कि वो चेक करते हैं ना, वो कंपेयर करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ठीक है? और फिर आप क्या करते हैं हमेशा, इसको हम कहते हैं, मैं एग्ज़ैक्ट थ्योरी का नाम जो है शायद भूल रहा हूँ। वो ये है कि मिसाल के तौर पर अगर आप ये कहते हैं कि आप अपने ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर जो है बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है? तो आपके साथ जो दूसरे बंदे काम कर रहे हैं, उनको कितना आउटपुट मिल रहा है, आपको अपनी परफॉर्मेंस का कितना मिल रहा है, ठीक है? आपके इनपुट, पहली पहली चीज़ ये है कि आपके इनपुट का आउटपुट कितना मिल रहा है, यानी आप कितना एफर्ट्स ले रहे हैं, उसके मुकाबले में आपको आउटपुट कितना मिल रहा है। दूसरा फिर इसको कहते हैं हम कि इंटरनल इनपुट आउटपुट रेशियो ना, फिर होता है एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट रेशियो, कि आप अगर यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो आपकी लेवल के जो लोग हैं, वो दूसरे इदारों में जो काम कर रहे हैं, उनको कितनी सैलरी या कितने बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो ये इससे फिर क्या होता है, इनइक्वालिटी के बारे में आपकी जजमेंट जो है वो डेवलप होती है कि आया कितनी इनइक्वालिटी आपके पास है। तो अगर हर बंदा जो है
वो अपने आप को और अपने इनपुट को और आउटपुट को एनालाइज कर रहा होता है। तो बहरहाल हमारे जितने भी बिहेवियर्स हैं वो उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो किसी न किसी थ्योरी के ऊपर बेस करती होती है, और लॉट ऑफ थ्योरी जो है यहाँ पे यूज हो रही है। हम एक जो है वो स्पेशली कुछ थ्योरीज को एक टाइम पे कवर करेंगे, मिसाल के तौर पर जिस तरह सोशल लर्निंग थ्योरी है, सोशल एक्सचेंज थ्योरी है, और ये जिस तरह हमने बात की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है, और जो आप डिमांड रिसोर्स थ्योरी है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स थ्योरी है, ठीक है, और इस तरीके से ब्रॉड एंड बिल्ड थ्योरी है, और डिफरेंट पर्सनैलिटीज की थ्योरीज अवेलेबल हैं। इन सारों को लोग जो है वो एनालाइज करते हैं, चेक करते हैं, और उनके मुताबिक ही हम अपने हाइपोथेसिस और अपने फ्रेमवर्क जो है वो डेवलप करते हैं। ठीक है, तो कोई भी जो रिसर्च है और वो थ्योरी के बगैर जो है वो आप उसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहली बात ये हो गई कि थ्योरी जो है वो आपकी इस रिसर्च में हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ हम बात करते हैं मोनोग्राफ के बारे में कि जो आपका है एक मोनोग्राफ क्या चीज होती है। व्हाट इज अ रिसर्च पेपर, और वो कहते हैं जी कि अगर अगर रिसर्च पेपर को अगर आप आइडेंटिफाई करें तो क्या है, इट इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डेटा फॉर सम पर्पस। जब हम कोई भी रिसर्च पेपर लिखते हैं ना, तो वो रिसर्च पेपर आपका अगर छोटी फॉर्मेट में है या उसके एक पर्टिकुलर छोटी सी साइज में है, तो उसको हम रिसर्च पेपर कहते हैं किसी जर्नल में पब्लिश कराने के लिए। और वो 5000 वर्ड से लेकर तकरीबन 15,000 तक भी चले जाते हैं, मगर 5 to 10,000 के पेपर आमतौर पर होते हैं। तो 5 से 10,000 वर्ड्स के, तो इसको हम क्या है, सिस्टम प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डेटा फॉर सम पर्पस। उसके लिए भी कोई ऑब्जेक्टिव होता है और आप एक डेटा कलेक्ट करते हैं, उसके ऊपर जो है किसी थ्योरी के ऊपर बेस करके आप जो है वो अपने डेटा को प्रेजेंट करते हैं। पूरा उसका फॉर्मेट है, हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो उसको हम रिसर्च प्रोग्राफ क्या कहते हैं, रिसर्च पेपर कहते हैं, किसी जर्नल में पब्लिश करते हैं। मगर जो मोनोग्राफ है वो क्या है, बुनियादी तौर पर मोनोग्राफ हैज सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स विद बुक और द रिव्यू इन सर्वे पेपर्स। Monograph is a special type of book written on a single specialized topic, devoted mainly for the research works, could pose some unsolved problems, and may provide detailed or retained explanation of some research papers. So it is like a big survey paper, but it does not appear in journals. It rather appears the way most books appear. A book is written work on a broad range of topics belonging usually to the same subject area. Unlike review papers, a research paper is a document containing original results of the finding. The word monograph is derived from the Greek mono यानी single and grapho to write, meaning a writing on a single subject. तो मोनोग्राफ का मतलब क्या हुआ कि किसी एक चीजों को, कोई भी एक सिंगल टॉपिक के ऊपर जो है वो आप कोई काम करना चाहते हैं, कोई लिखना चाहते हैं, और किसी एरिया के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो उसको हम मोनोग्राफ कहते हैं। अब देखें, दो तीन चीजें यहाँ पे आपको समझनी पड़ेंगी। एक तो आपने थीसिस या डिसर्टेशन की आपने बात सुनी होगी। डिसर्टेशन भी बुनियादी तौर पर जो है वो एक रिसर्च ही होती है, जो कि मगर ये है कि उसकी जो साइज है वो ज़्यादा होती है और उसमें बहुत सी चीज़ें आप इन्वॉल्व कर लेते हैं। और उस डिसर्टेशन जो है उसको एक और चीज़ उसमें फ़र्क होता है, वो है उसके एनालिसिस का, कि उसका जो थीसिस है वो बुनियादी तौर पर किसी न किसी डिग्री के साथ अटैच होती है, यानी वो उस डिग्री की पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट पूरी करता है। और डिसर्टेशन का टॉपिक को अप्रूव करने से लेकर और आगे जो है वो चलकर जो है वो उसकी अप्रूवल तक कोई ना कोई सुपरवाइजर आपके साथ होता है। यानी कि डिसर्टेशन में एक गाइडेड रिसर्च उसको कहते हैं ना, क्या कहते हैं, गाइडेड रिसर्च कहते हैं डिसर्टेशन या थीसिस को। और वो कोई ना कोई एक कमेटी होती है जो उसको अप्रूव करती है, और वो किसी न किसी डिग्री की पार्शियल रिक्वायरमेंट में होती है, तो उसको हम डिग्री या उसको डिसर्टेशन या थीसिस कहते हैं। ठीक है, फिर आगे चलकर रिसर्च पेपर जो है वो बुनियादी तौर पर गाइडेड भी हो सकते हैं, अनगाइडेड भी हो सकते हैं। यानी आप अपनी थीसिस से भी पेपर जो है वो निकाल सकते हैं, मगर आप वो क्या है, आमतौर पर जो है जो जर्नल्स में आप पेपर पब्लिश करते हैं वो पीयर रिव्यूड होते हैं, और जर्नल्स की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, उसके मुताबिक आप फिल आउट करते हैं। बुनियादी तौर पर इन तीनों चीज़ों का अगर हम लेआउट देखेंगे तो मोर और लेस सेम होता है। ठीक है, मोर और लेस सेम होता है, मगर ये है कि जो रिसर्च पेपर होते हैं वो ओरिजिनल डेटा के ऊपर होते हैं और वो साइज में छोटे होते हैं। ठीक है, थीसिस थोड़ी सी बड़ी साइज में होती हैं, मगर वो गाइडेड रिसर्च होती हैं। बुक्स जो है वो बुक्स भी दो किस्म की होती हैं। बुक्स एक ये है कि एक सिंगल ऑथर बुक्स हैं और दूसरी एडिटेड बुक्स होती हैं। सिंगल ऑथर बुक्स जो है बुनियादी तौर पर किसी भी बड़े एरिया को कवर करती हैं, मगर एक ही जो है वो बंदा उसको लिखता है, या दो बंदे लिख सकते हैं। ठीक है, मगर सारा कुछ जो है कंटेंट उन्हीं बंदों का होता है। ठीक है, एडिटेड बुक्स जो होती हैं
उसमें क्या होते हैं कि चंद एडिटर्स होते हैं जो कि इनवाइट करते हैं एक टॉपिक, एक थीम के ऊपर जो है डिफरेंट टॉपिक्स को, और उनको फिर चैप्टर वाइज जो है वो डिवाइड कर देते हैं और उसमें इंक्लूड कर देते हैं। तो वो आप समझिए कि एडिटेड बुक्स होती हैं, यानी कि उसमें हर सेक्शन या चैप्टर या जो भी उसका हो उसके डिफरेंट ऑथर्स उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। मगर ये बुक्स हो गई। अब बुक्स जो है वो भी उसके अलग से पब्लिशर्स होते हैं, पब्लिश करते हैं, मगर जर्नल उसको पब्लिश नहीं करते। मगर जो रिसर्च मोनोग्राफ हैं ये थीसिस से भी डिफरेंट होते हैं, रिसर्च पेपर से भी डिफरेंट होते हैं और बुक से भी डिफरेंट होते हैं, मगर बुक से थोड़े से सिमिलर होते हैं। और ये मोनोग्राफ जो है ये भी बुनियादी तौर पे एक बुक शेप में ही मौजूद होते हैं, मगर ये कि आप उसको जो है समझेंगे एक सिंगल टॉपिक के ऊपर या सिंगल थीम के ऊपर आप काम करते हैं। इसमें भी आप ओरिजिनल जो है वो डेटा को कलेक्ट जरूर करते हैं और बाज़ औक़ात रिव्यू पेपर भी आप कर लेते हैं, बाज़ औक़ात आप दूसरे पेपर का सर्वे भी कर लेते हैं, ठीक है। मगर एक अपना ओपिनियन जो है आप लिखते हैं एक बड़े लार्जर एसे की सूरत में, तो उसको हम जो है वो रिसर्च मोनोग्राफ कहते हैं। अब यहाँ पे सिचुएशन ये है कि डिसर्टेशन को भी आप बुक में कन्वर्ट कर सकते हैं, बुक को या डिसर्टेशन को आप मोनोग्राफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और मोनोग्राफ को आप आगे जाकर बुक में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक लंबी कहानी है, ठीक है। तो बहरहाल जो मोनोग्राफ यहाँ पे समझ में आया आपको कि किसी सिंगल टॉपिक के ऊपर जो चीज़ आप लिखते हैं, सिंगल सब्जेक्ट के ऊपर जो आप राइटिंग करते हैं, उसको हम मोनोग्राफ कहते हैं, सही है। और उसका प्रोसेस वही है और जो कि एक रिसर्च पेपर लिखने का हो सकता है या बुक का या थीसिस के लिखने का हो सकता है। यहाँ हम क्या करेंगे इस सब्जेक्ट के अंदर कि बुनियादी तौर पर मैं आपको रिसर्च करना सिखाऊँगा कि रिसर्च करते कैसे हैं, ठीक है? और उसमें आपने क्या प्रोसेस फ़ॉलो करना है, डेटा कैसे कलेक्ट करनी है, रिसर्च डिज़ाइन कैसे करनी है, रिसर्च की राइटिंग कैसे करनी है। मगर ये है कि आप क्या करेंगे टॉपिक्स अपने एरिया के बारे में आप खुद बताएँगे, ठीक है? मिसाल के तौर पर अगर एक बंदा लिखता है जी कि राइज़ एंड फॉल ऑफ स्टील इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, ठीक है? कि स्टील इंडस्ट्री का के लिए क्या प्रॉब्लम है? मैं मिसाल के कुछ लोग हैं जो कि हमारे यहाँ स्टील मिल में काम करते हैं। तो ये एक बड़ा टॉपिक हो सकता है कि जी क्या इसके लिए है, लाज़मी बात है देखें टॉपिक से ही आपको अंदाज़ा हुआ कि बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि व्हाट इज़ द राइज़ एंड फॉल ऑफ द स्टील इंडस्ट्री एंड व्हाट आर द चैलेंजेस व्हिच आर बीइंग फेस्ड बाय द स्टील इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। तो एक बड़ा बहुत बड़ा टॉपिक। अब आप क्या करेंगे, पूरी इसकी हिस्ट्री जो है वो लेंगे और उसको में बात करेंगे। फिर हो सकता है आप इसमें चंद लोगों से सर्वे करें, आप कुछ लोगों के इंटरव्यू भी करें, उनको भी इसमें इंक्लूड करें, डेटा को लें, मुख्तलिफ किस्म के डेटा को आप प्रेज़ेंट करें और मुख्तलिफ किस्म की जो इससे रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं, उनको आप करें। और जो है राइज़ एंड फॉल क्या हुआ था कि पहले जो है वो पाकिस्तान स्टील मिल जो है, एक पब्लिक सेक्टर की स्टील मिल थी, उसने किस किस्म की उसके क्या चैलेंजेस थे, उसमें क्या रोल था। फिर जब प्राइवेटाइज़ेशन हुई है या प्राइवेट जो इदारे इसमें इंक्लूड हुए हैं, तो उन्होंने उनकी क्या स्ट्रेटजीज़ थी, क्यों फॉल आउट हुआ पाकिस्तान स्टील मिल का, और ये पूरा आप स्टील इंडस्ट्री का एक रिव्यू जो है वो पेश कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये एक आपका जो है काम होगा। उसमें आप समझिए कि एक मिक्स मेथड स्ट्रेटजी भी आप अख्तियार कर सकते हैं और उसमें आप एक डॉक्यूमेंट जो डेवलप करेंगे, हम उसको रिसर्च मोनोग्राफ का नाम दे देते हैं। और दूसरी बात ये मिसाल के तौर पर कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पे इस वक़्त आपने देखा होगा कि इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज़ की जो है वो सबसे ज़्यादा बात हो रही है और कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज़ के ऊपर काम हो रहा है और काम होना चाहिए, उसकी नीड के ऊपर बात हो रही है। और दुनिया में मुख्तलिफ़ मुल्कों में इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज़ और इमरजेंसी मेडिसिन के ऊपर स्पेशलाइज़्ड डिग्रीज़ जो है वो इश्यू हो रही हैं। मगर हमारे यहाँ पाकिस्तान में इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज़ के ऊपर कोई काम जो है वो बुनियादी तौर पर नज़र नहीं आ रहा, तो उसकी नीड है, आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। चेक कर सकते हैं, ग्लोबल एनवायरनमेंट को चेक करके आप बता सकते हैं। कोविड के हवाले से मुख्तलिफ किस्म के लोग शुरू का आपने पिछले पूरे साल से देखा होगा कि लोग लिख रहे हैं कि कोविड के इम्पैक्ट जो है मेंटल हेल्थ पे क्या है, लॉट ऑफ पेपर्स आर पब्लिश्ड ओवर देयर। कोविड हेल्थ के इकोनॉमिक, सोशो इकोनॉमिक के ऊपर क्या है और वैक्सीनेशन के इम्पैक्ट क्या हैं, लोग उसको कैसे देख रहे हैं, फियर ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शंस क्या है, वो सारी इन चीज़ों के ऊपर लोगों ने काफ़ी सारा काम किया है और इससे पेपर पब्लिश हुए हैं। उसके किसी एरिया के ऊपर आप जो है वो कर सकते हैं। एम्बुलेंसेस की जो है वो स्टडीज़ हो रही हैं, मिसाल हमारे यहाँ डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो उनके ऊपर भी आप कर सकते हैं कि एम्बुलेंस सेक्टर का क्या रोल है और किस हद तक काम कर रहे हैं। कोई एक पर्टिकुलर केस स्टडी को आप ले सकते हैं, इसमें किसी एक पर्टिकुलर इश्यू को आप पकड़ के उसके ऊपर बात कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप अपने आइडियाज़ डेवलप करें कि मैंने किस एरिया में काम करना है, डेफ़िनिटली वो एरिया
जो कि आपके नज़दीक हो, यानी आप जिसमें आपका अपना एक्सपीरियंस हो, उसके पर आप जो है वो फर्दर काम जो है वो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप मुझे मेरे पास आ जाएंगे, एक अपना अपना आइडिया जो है वो शेयर करेंगे, और उसके ऊपर फर्दर जो है हम जो है वो डेवलपमेंट्स करेंगे, और आपको थोड़ा सा उसके ऊपर मैं गाइड भी करूँगा कि आप उसको किस तरीके से जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात हुई, ठीक है। और कोई इशू है तो पूछ लें। मोनोग्राफ के बात समझ में आई है? और ये आइडियाज का जो आपने बताया, तो ये डिसएडवांटेज वगैरह बताने हैं क्या, मतलब क्या किस तरह डेफिनेटली। से इम्प्रूव कर सकते हैं? हम देखें, हाँ बिल्कुल, उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है। और मिसाल तो आप ऑटो इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में जो ऑटो इंडस्ट्री है उसको क्या चैलेंजेस हैं, और किस जी। तरीके से उसको उसका राइजर फाइल किया हुआ है, और बिग थ्री की जो आप उसके ऊपर भी बात कर सकते हैं, और क्या इस हिसाब से प्रॉब्लम्स हैं, और अपनी उसमें देखिए तीन चीजें होती हैं। सिचुएशनल एनालिसिस करें, ठीक है। फिर ओके। आप उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का बताएं, और तीसरा आप क्या करेंगे, रिकमेंडेशंस देंगे, क्या रिकमेंडेशंस है, ठीक है। उसमें अप्रोचेज जो डिफरेंट है, मैं यहाँ पे हम आगे चल के मुख्य लेक्चर में डिस्कस करेंगे, मगर यहाँ पे चूंकि बात चली है तो उसमें एक तो आप डॉक्यूमेंट रिसर्च भी कर सकते हैं, यानी कि जो पब्लिश्ड पेपर्स हैं या उनको स्टडी करके आप बात को आगे बढ़ा सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, इंटरव्यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारी चीजें आप करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रेटजीज आप फॉलो करके। तो ये एक डॉक्यूमेंट आपने तैयार करना है, और जो कि ओरिजिनल हो, न्यू हो, मतलब कोई अपना आपका अपना काम हो, ठीक है, उसके ऊपर आपने काम करना है जी। कोस्टल जी डेवलपमेंट बिल्कुल। के ऊपर आप बात कर सकते हैं, कोस्टल टूरिज्म पे बात कर सकते हैं। मैं जस्ट आइडियाज दे रहा हूँ ना, कुछ लोगों के अपने अपने भी आइडियाज होंगे, अपने अपने एरिया में लोग, इतने सारे लोग आप लोग काम कर रहे हैं, और उसके अलावा भी लोगों के अपने अपने हैं। आप चलें, आप खुद भी बात करें कि किस किस एरिया में और काम हो सकता है इस हिसाब से। Hello. जी जी डॉक्टर साहब। Sir, impact of COVID-19 on businesses and livelihood. हाँ, इसके ऊपर काफी काम हुआ है। मैंने कहा ना कि कोविड-19 का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस पे क्या फर्क पड़ा है, हमारी ओवरऑल इकोनॉमी में क्या फर्क पड़ा है, लोगों की लाइफ के ऊपर क्या फर्क पड़ा है। इस तरह के बहुत से काम जो है हमारे पास मौजूद हैं, इसमें आप रिसर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। चलें, और सर कोई आइडिया? जी डिजिटल मार्केटिंग पे, ऑनलाइन अर्निंग पे जिस तरह से इसका काम ज्यादा, कोविड में जितना ज्यादा काम मोस्टली घर से हम काम कर रहे हैं, ऑनलाइन अर्निंग हो गया या रिसर्च डेवलपमेंट हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, डिजिटल अर्निंग हो गया, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हैं। बिल्कुल सही है, आप देखें बिल्कुल। और डिजिटल बैंकिंग के ऊपर भी है, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर भी है, और ई कॉमर्स का भी इसमें रोल हुआ है, और ऑनलाइन जो शॉपिंग है उसके उसका भी यानी कि आप देखें, एक चीज जब बंद होती है दूसरी चीज शुरू होती है ना, तो इसके ऊपर भी डेफिनेटली काम हुआ है। तो आप काम कर सकते हैं कि क्या किस तरीके से लोगों की एडॉप्शन हुई है, ठीक है। और बिल्कुल ये भी एक एरिया है, एक टॉपिक है, ठीक है, अच्छी बात है। और बताएं, अपने अपने आइडियाज हैं, जरा ब्रेन स्टॉर्मिंग करें। मैं नेक्स्ट सेशन में जो है वो थोड़ा सा इसको, 1 मिनट रह गया है, इसमें आप दो दो चीजें अपने अपने बताएं। नेक्स्ट सेशन में हम नया लेक्चर ओ अपना उसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट सेशन में। जी बोले, जल्दी जल्दी बोले। सर एचआर की फील्ड में अगर हम ले लें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे हो गया, ठीक है। डिफरेंस तो किसी भी उसमें हमारे डिफरेंट डिफरेंट इंसेंटिव रिवार्ड सिस्टम का हमारे ऊपर, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज के ऊपर क्या असर पड़ता है, इंसेंटिव रिवार्ड का, ठीक है इम्पैक्ट ऑफ उसका। इंसेंटिव रिवार्ड सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। ठीक है, ठीक है, मतलब इसमें ना प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है, देखो ओरिजिनली प्रॉब्लम क्या है। अब इसमें ग्रीन एचआरएम के ऊपर भी बात हो सकती है, या जो है अपनी मुख्तलिफ किस्म के जो है, हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि मुख्तलिफ सेक्टर्स के भी बात कर सकते हैं, जिसमें हॉस्पिटलिटी सेक्टर है, और उसके अलावा बहुत से और सेक्टर्स हैं, वो किस तरह डेवलप हो रहे हैं और क्या चीजें हो रही हैं, तो उसमें भी बात हो सकती है। ठीक है, आगे चलें, और कोई